वेलकम टू भारतीय राजपूत क्लासेस। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का सोशल साइंस का चैप्टर 2 चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ लाइफ इन इंडिया फ्रॉम द ईयर 650 टू 1200। इंडिया में कैसी लाइफ थी इन द ईयर 650 टू 1200, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट एंड विलेजेस। इन दोज डेज इन कंपेरिजन देयर वेयर मोर फॉरेस्ट देन इट इज़ टुडे। आज के हिसाब से देयर वर मोर फॉरेस्ट एट दैट टाइम, है ना। There were many villages and towns as well, but they were much smaller than the villages and towns of today. आज के हिसाब से जो शहर है या जो गांव है उसमें पहले के जो शहर और गांव थे वो ज़्यादा छोटे थे। Forest dwelling people. Many people lived in forests during this period like they used to in ancient times. And like the prehistoric people, they survived on fruits and tubers and the animals they hunted. और prehistoric people के जैसे वो लोग फ्रूट्स पे, ट्यूबर्स पे यानी कि कंदमूल पे और एनिमल्स को मार के अपना गुजारा करते हैं। बट देयर लाइफ्स ऑल्सो बिगेन टू चेंज। बट वो जो हंटर्स थे, प्री हिस्टोरिक समय के लोग थे, उनकी लाइफ भी चेंज आई। दे टुक टू फार्मिंग, कटिंग डाउन अ फ्यू ट्रीज टू एंड क्लियरिंग अ पैच ऑफ फॉरेस्ट लैंड। एक जंगल में एक ज़मीन का हिस्सा खाली किया उन्होंने पेड़ काट के। और बट उनका एक चीज़ ये था कि दे नेवर प्लो द लैंड नॉट डिड दे इरीगेट। ना ही वो फसलों में पानी डालते थे और ना ही वो ज़मीन में हल चलाते थे। दे जस्ट यूज टू स्कैटर द सीड्स एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स टिल इट वॉज रेडी टू बी हार्वेस्टेड। जस्ट बीज को सा फेंक देते थे एंड वेट करते थे कि वो कब फसल उगे एंड उनको जंगली जानवरों से बचा के रखते थे जब तक वो फसल रेडी नहीं हो जाती थी। दीज फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल लिव्ड इन स्मॉल सेटलमेंट्स कॉल्ड पली। और इनका सेटलमेंट्स का नाम क्या था? पली। Apart from farming, they also collected many natural products from the forest and exchanged these in the villages and towns for whatever they needed in their daily lives. ठीक है। अब वो क्या करते थे, फार्मिंग के अलावा ये लोग क्या करते थे, बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट जंगल से इकट्ठा करते थे एंड दे यूज टू एक्सचेंज दीज थिंग्स इन द नियर बाय विलेजेस एंड टाउन्स सो दैट दे गेट देयर डेली नीड्स थिंग्स, है ना, लाइक ग्रेन, ऑयल, आयरन, सॉल्ट एंड सो ऑन। सो दे ऑल्सो गेव गिफ्ट्स टू द किंग्स एंड दे ऑल्सो गिव गिफ्ट्स टू द kings. The inscriptions and manuscripts of this era tell us that the Shabaras, Nishads, Pulindas and Bhils were some of the prominent tribes who lived in this way. तो और जो inscriptions and manuscripts we got from this era, तो that tells us that Shabaras, Nishads, Pulindas and Bhils जो हैं were some of the prominent tribes who lived in the way. और वो एक prominent tribes है जो लगभग इस वे में रहे हैं, इस वे में रहते हैं। ओके। Now we will read about nomadic tribes. In those days there were many nomadic tribes that roamed from one place to another. Nomadic tribes क्या होते हैं? Who they roam from one place to another. They are not going to settle in one place. They always roam. They include cattle rearing tribes who went in search of pastures, है ना। They included क्या? Cattle rearing tribes, यानी कि जैसे बंजारा ग्रुप्स और समथिंग, मतलब एनिमल्स के साथ वो लोग चले गए और इधर से उधर घूम रहे हैं। Their lives too begin to change. Then after so many times their life also is begin to change. Many of these tribes gave up their nomadic way of life. अब बहुत सारी tribes ने अपनी ये nomadic way of life यानी कि घुमंतू लाइफ को छोड़ दिया and they used to do farming and settling in villages. They started these things. There were also ironsmiths and other expert craftsmen who went far and wide to sell their wares or to dig and clean ponds. And बहुत सारे ironsmiths, लोहार and craftsmen, कलाकार भी थे who used to settle in the far places and used to make they used to sell their products. और जैसे ये कुआं खनने का या पॉन्ड खनने के डिग का काम होता था, ये सारी चीज़ें करते थे। Acrobats went around singing and dancing to entertain people. Acrobats were also there who used to do singing and dancing to entertain people in the villages and towns. Jogis, sannyasis and beggars forsook their homes and families. They used to leave their homes and families to spend their lives roaming around the countryside, and the villagers and town dwellers would give respectfulness to them, and they will get respect from all the villages and the town peoples. Okay. Now villages and town dwellers, what they are. The villages kept growing bigger and bigger as more and more people settled in them and took to farming. Villages जो थे, गाँव, वो बड़े से बड़े होते जा रहे थे because more and more people are coming to settle there and used to do farming. With the development of irrigation, people were able to cultivate lands where it was not possible to do farming earlier. और
there are so many developments in irrigation field, so people were able to cultivate lands where it was not possible to do farming earlier. जहाँ पे ज़मीन में फसल उगा नहीं सकते थे या जहाँ पे फसल उगाई नहीं जा सकती थी, with the help of development in irrigation field they used to cultivate that land also. तो even the mountain slopes of the Himalayas and the deserts of Rajasthan were brought under the plow, वहाँ पे भी हल चलाया गया. History tells us that 1400 lakes, हमारी हिस्ट्री इतिहास हमारा बताता है कि there were 1400 lakes built in Ratanpur in Chhattisgarh, in our Chhattisgarh in the 11th century. Okay, only, and but till now only 250 lakes were existing today. Okay, people of different castes lived in villages. Different caste of peoples lived in the villages. Their lives were bounded by their caste system, and each caste lived in a separate settlement. And every person's or every family had a caste system, and they used to live with that caste system only. Okay, some caste groups like the Chandals, Sopaks, Soods and Magdas were not even allowed to live within the boundaries of the village. These are the कहना चाहिए these are the some caste groups कि they are not allowed to live in the at least live in the boundary of that village, okay, or town. They did work like, and they have to do a work like hunting, skinning animals, making leather goods, cutting wood, cremating the dead and so on. So they are not allowed to live near the boundary of the village and town also. The heads of the main peasant families would meet to collectively solve the problems of the villagers and to undertake public works in their villages. They were often addressed as Panchakul and Mahatar, etc. The heads of the main peasant, बड़ी बड़ी families के जो heads होते थे, they used to meet collectively to solve the problems of the villagers कि ओके एंड टू अंडरटेक पब्लिक वर्क्स एंड क्या क्या काम होगा गांव में, कैसे करवाना है. तो दे वर ऑफन एड्रेस्ड एज पंचकुल महतर, एंड उनका नाम क्या, उनको क्या एड्रेस करके बोला जाता था, पंचकुल और महतर एक्सेट्रा. मोस्ट नॉर्थ इंडियन विलेजेस वर अंडर द कंट्रोल ऑफ भोगपति. जो नॉर्थ इंडियन विलेजेस है लाइक द ऊपर का हिस्सा कहना चाहिए, पंजाब साइड, दिल्ली साइड, तो कंट्रोल ऑफ अ भोगपति हु वॉज यूजली नॉट जस्ट एन ऑफिसर. भोगपति वॉज नॉट एन ऑफिसर बट अ रिलेटिव ऑफ द किंग, लेकिन एक राजा का रिश्तेदार होता था, राजपुत्र और राजपूत. दीज ऑफिसर्स हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द विलेजेस. इनका गाँवों पे बहुत ज़्यादा अधिकार था. टैक्स इकट्ठा करते थे. Tax were levied on marriage and villages festival as well as on wells and ponds. झील, कुओं, शादी ब्याह, गाँव के त्योहारों में टैक्सेस वसूले जाते थे. The villagers also had to work without the payment and they used to do work without the payment whenever required. And that practice is known as the begari or begar. The most significant change during this period was in the economic field in the way revenue was collected from the villagers. और इसी समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आया किसमें, इकोनॉमिक फील्ड में. ठीक है, जब रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था गाँव से. ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड द किंग हैड द सोल राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू. किंग के पास पूरा राइट था कि ही हैज़ टू कलेक्ट द रेवेन्यू. बट द नाउ द ट्रेडिशन ऑफ गिफ्टिंग लैंड एंड विलेजेस टू ब्राह्मीन्स, कि ब्राह्मीन्स को पूरा गाँव का गाँव दे दिया और एक गाँव दे दिया, एंड स्कॉलर्स जो दार्शनिक थे उनको दे दिया गया, तो ये एस्टेब्लिश हो गया. तो दीज भूपतिज रिटेन्ड अ मेजर पार्ट of the revenue collected from their gifted lands, giving only a small portion to the king. And the land is belong to the whole land belongs to the Brahmin or the scholars. So they used to take the revenue from the villagers and they keep a big amount for themselves and a small amount to the king. So they became very prosperous time to time and began behaving like independent rulers, है ना. And because of revenue collection they became very prosperous and wealthy, and they think okay, why we should follow the rules of king, and we are independent rulers, even maintaining their own armies. They used to maintain their own armies also. Instead of taxes being collected in the names of the king, they were now collected in the name of the feudal vassal, and they started to collect the name in the samanti, means they are the samants na. So अब राजा के नाम पर नहीं, सामंत के नाम पर वसूल करने जाने लगा रेवेन्यू. तो द डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द किंग एंड द पब्लिक एंड द विलेजर्स वॉज दस ब्रोकन. सो वो टूट गया. तो द सिचुएशन इन साउथ इंडिया वॉज डिफरेंट, बट जो साउथ साइड है इन द चेन्नई साइड वॉज डिफरेंट. द हेड्स ऑफ प्रोमिनेंट फैमिलीज वर्क कलेक्टिवली फॉर द विलेजेस. वो पूरा मिलके गाँव के लिए काम करते थे. एंड दीज विलेजेस वर असेंबलीज वर नोन एज द उर.
ओके। तो द ऊर ऑफ सेवरल विलेजेस कंबाइंड टू फॉर्म अ नाडू, एंड जो ऊर है अलग अलग गाँव के, उसको जब हम कंबाइन करते हैं तो दे यूज टू मेक अ फॉर्म अ नाडू। एंड द मेन फंक्शंस ऑफ द ऊर एंड नाडू वर टू कलेक्ट टैक्सेस, पनिश रॉन्ग डूअर्स, कि टैक्स कलेक्ट करना है, पनिश जो गलत काम करेंगे उनको पनिश करना है, सॉल्व विलेज प्रॉब्लम्स ऑल्सो, डिस्प्यूट्स ऑल्सो, एंड हाउ टू मेंटेन द टेम्पल्स एंड द पॉन्ड्स एंड सो ऑन थिंग्स ऑफ द विलेजेस। ओके। At that time, the Brahmins were respectful across India. In our India, the Brahmins were most respected peoples. So they were gifted lands and villages so that they would settle down there and educate people and perform pujas, है ना. And these gifted villages were known as the Brahmadeya, यानी कि ब्राह्मण को दिया गया था. Okay. Now we will read about some restrictions on women. Several restrictions were imposed on women during this period, and these practices gradually become widespread. There were so many restrictions. Till now also there are so many restrictions on women, and at that time also there were so many restrictions on women. है ना. और धीरे धीरे सारी जगह वाइड स्प्रेड, इट स्प्रेड वाइडली, है ना, हर जगह फैल गया. इट वॉज नॉट कंसिडर्ड प्रॉपर फॉर वुमेन टू स्टडी. उनके हिसाब से कि वुमेन हैज़ नो राइट टू स्टडी, नो राइट टू ट्रेवल, टू मीट पीपल, टू डू बिजनेस और टू मैरी टू अ पर्सन whom she likes. No, she can't marry to a person according to her wish also. So they were married at a very young age to a very older person or as a child marriage, and if their husband died they have to मतलब कहना चाहिए उनको सती होना पड़ता था. दे हैव टू डाई, कि विद देयर हस्बैंड्स बॉडी, उनको अब जलना पड़ता था, उनको फोर्स किया जाता था कि यू हैव टू गो एंड बर्न विथ योर हस्बैंड. ओके. तो दिस ट्रेडिशन वॉज नोन एज सती, है ना. इस ट्रेडिशन को हम सती प्रथा बोलते हैं. विडोज वर नॉट अलाउड टू री मैरी, विधवाओं को दोबारा शादी नहीं करनी दी जाती थी. द रिस्ट्रिक्शंस ऑन वुमेन्स वर नॉट लिमिटेड टू द अपर क्लास. बड़ी जातियों में नहीं, अब ये छोटी जाति के लोग भी ये चीज़ को फॉलो करने लगे. द ऑर्डिनरी पीपल और द आम लोग भी ये सारी चीज़ों को मानने लगे. वी शैल सी लेटर हाउ वुमेन रेज देयर वॉइसेज. औरतें कैसे आवाज़ उठाई और कैसे अब इन सारी चीज़ों से आगे निकली, ये हम आगे पढ़ते हैं. सेवरल सती अल्टार्स, सती चौरा के नाम से Several sati altars exist in the precincts of the Mahamaya temple. रतनपुर का महामाया टेम्पल है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे आप देख सकते हैं. शोइंग दैट द सती प्रथा और ट्रेडिशन वॉज प्रिवलेंट इन दिस, जिससे ये पता चलता है कि वहाँ पे सती प्रथा बहुत जोरों शोरों से फैली हुई थी. टुडे चाइल्ड मैरिज एंड सती सिस्टम इज कंसिडर्ड एज अ क्राइम. हाउएवर रेमिनेंट्स ऑफ दीज प्रैक्टिसेस कैन स्टिल बी सीन, बट फिर भी कहीं कहीं पे ये देखा जा सकता है. द अथाबिसा मेला जो होता है इज हेल्ड ऑन द पूर्णिमा, फुल मून की रात को होता है, ऑन द मंथ ऑफ माघ टू ऑनर सतीज, ताकि सतियों के सम्मान में ये मेला होता है. Cities and trade. As more and more people took to farming and as the villages and towns grew, large market centers called मंडपिक developed. जैसे जैसे गांव बढ़ रहे हैं, शहर बढ़ रहे हैं, तो एक बड़ा मार्केट डेवलप हुआ जिसका नाम था मंडपिक. वेयर मर्चेंट्स फ्रॉम नियर एंड फार, जहाँ पे मर्चेंट्स यानी कि बेचने वाले सामान के व्यापारी लोग क्या करते थे, दूर से और पास से आते थे, कुड बाय एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स, अपने सामान को बेचते थे. दीज मार्केट सेंटर्स हैड परमानेंट शॉप्स, और विथिया सबकी परमानेंट शॉप्स होती थी, क्राफ्ट्समैन की, वीवर्स की, पॉटर्स, स्कल्पचर्स, पेंटर्स, गोल्डस्मिथ्स एक्सेट्रा सब रहते थे. द किंग और फ्यूडल वेसल हु लिव्ड इन दिस सिटीज वुड कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द मार्केट्स. जो राजा होता था या जैसे उनके सामंती होते थे वो यहाँ से टैक्स कलेक्ट करते थे मार्केट से. द ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन एंड किंग्स कंस्ट्रक्टेड मैग्निफिशेंट टेम्पल्स. जो ट्रेडर्स व्यापारीज होते थे, जो कलाकार होते थे और जो राजा होते थे, वो लोग बड़े बड़े टेम्पल्स और डोनेशंस दे दे के पूजा करवाना, मतलब अपने आप को दिखाते थे कि हम इतने बड़े हैं, तो जितने बड़े उतना बड़ा टेम्पल, ये सारी चीज़ें वो करते थे. फेस्टिवल्स के लिए डोनेशंस देना, पूजा के लिए डोनेशंस देना, ये सारे काम करते थे. टेम्पल्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ साउथ इंडिया. साउथ इंडिया के इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में जो डेवलपमेंट के लिए मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि जो राजा थे और जो उनके सामंती थे वो अपने राजशाही दिखाने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, दे यूज टू कंस्ट्रक्ट मैग्निफिशेंट टेम्पल्स विथ इंट्रिकेटेड कार्विंग्स. बहुत ही कलाकारी से वो बनवाते थे उस सब चीज़ों को. These magnificent temples with intricate carvings were donated large villages. बड़े बड़े गांवों को दे देते थे दान में. So they would collect revenue, और मंदिर में रख रखाव के हिसाब से वहाँ पे रेवेन्यू आता था. तो their wealth kept increasing and temple committees were set up to look after their affairs and invest their revenue in trade.
देयर अफेयर्स एंड इन्वेस्ट देयर रेवेन्यू इन ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एंड फिर उसके बाद मंदिर की कमेटी बैठ जाती थी कि उनके मंदिर का रख रखाव कैसे करना है, कहाँ पे व्यापार में, किस चीज़ में, इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है। दिस कमिटीज़ ऑल्सो बिगेन गिविंग इंटरेस्ट फ्री लोन्स ऑन अ लार्ज स्केल। बड़े पैमाने पे ये बिना ब्याज के पैसा देना चालू कर दिए। Whenever a temple was constructed, a large number of craftsmen, laborers, merchants and Brahmins collected, so many new cities came into existence also. तो जैसे जैसे क्या हुआ कि मंदिर बनना चालू हुए तो बहुत बड़े पैमाने पे क्राफ्ट्समैन, लेबरर्स, वर्कर्स, व्यापारी, ब्राह्मण, पंडित सब आ गए। तो एक नए शहर का तो ड्यूरिंग दोज डेज मर्चेंट्स ट्रैवल नॉट जस्ट टू डिफरेंट सिटीज़ इन इंडिया बट टू डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो फॉर देयर ट्रेड। Merchants from other countries also came to India. Trade across the seas was done from the ports of Gujarat और सी के द्वारा, समुद्र के द्वारा भी व्यापार होते थे, जैसे गुजरात, कोंकण, केरला, तमिलनाडु, ये सारे सी पोर्ट्स थे इंडिया में। द साउथ इंडियन मर्चेंट्स फॉर्म्ड गिल्ड्स कॉल्ड नानादेसी एंड मणिग्रामम टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। जो इंडियन मर्चेंट्स थे उन्होंने अपने लिए कुछ चीज़ें बनाई थी, गिल्ड्स फॉर्म किए थे, जो नानादेसाई एंड मणिग्रामन, ताकि वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। दे ट्रैवल टू चाइना, इंडोनेशिया, द अरब कंट्रीज, ईरान एंड अफ्रीका टू ट्रेड। व्यापार के लिए यहाँ सब जगह गए। सिमिलरली मर्चेंट्स फ्रॉम अरब कंट्रीज, सेंट्रल एशिया एंड चाइना ऑल्सो केम टू इंडिया। मैनी फॉरेन मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स सेटल्ड अलॉन्ग द कोस्टल एरियाज ऑफ द कंट्री। जो फॉरेन मर्चेंट्स थे और ट्रेडर्स थे वो भी कोस्टल एरियाज में हमारे कंट्री के आसपास रहने लगे। एज अ रिजल्ट द लोकल पीपल केम इन टू कॉन्टैक्ट विद पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स के कॉन्टैक्ट में आए एंड वर और उनसे इन्फ्लुएंस्ड हुए। चाइनीज़, क्रिश्चियंस, ज्यूज सेटल डाउन इन केरला एंड तमिलनाडु, और जो अरब ट्रेडर्स थे वो गुजरात और केरला में सेटल हुए। तो दे सेंड स्पाइसेस, क्लोथ, राइस एंड अदर प्रोडक्ट्स टू देयर कंट्रीज। ठीक है। भक्ति मूवमेंट, टेम्पल्स एंड रीजनल लैंग्वेजेस। द फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर्शिप गॉड्स एंड गॉडेसेस अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशन। जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो जंगलों में रहना पसंद करते थे, वो गॉड्स एंड गॉडेस वर्शिप करते थे अपने ट्रेडिशन के हिसाब से। इवन टुडे ऑल्सो वी कैन फाइंड सो मैनी कैनोपीज एंड अल्तार्स इन द फॉरेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ कंटेनिंग एंशिएंट रिलिक्स ऑफ बूढ़ा देव एंड माथा देव। ये सब हम बूढ़ा देव और माथा देव के बारे में हम पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। उनकी मूर्तियाँ या कुछ जातियाँ ऐसी रहती जो इनको वर्शिप करती हैं। वी ऑल्सो फाइंड एल्टर्स इन विलेजेस वर पीपल वर्शिप्ड ठाकुर देव, जहाँ पे लोग ठाकुर देव की पूजा। ठीक है। फॉलोइंग द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन द मिडिल एजेस, अ न्यू मूवमेंट टुक रूट इन द स्पिरिचुअल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कॉल्ड द भक्ति मूवमेंट चालू हुआ। जो बुद्धिज़्म थे उनके चीज़ों को फॉलो करते हुए, और कहाँ चालू हुआ? तमिलनाडु में, इन द साउथ ऑफ द कंट्री। इट्स एडरेंट्स बिलोंग टू ऑल कास्ट एंड इंक्लूडेड मैनी डिवोटीज। और इसमें सारे जो इनके भक्त थे वो सारे कौन थे? अलग अलग कास्ट के लोग थे, बट वो लोग उनके डिवोटी कौन थे? किसके डिवोटी थे वो? शिव और विष्णु के। दे डिस्करेज द वर्शिप ऑफ मल्टीपल गॉड्स एंड गॉडेसेज एंड इंस्टेड प्रीच लव एंड फेथ इन शिव एंड विष्णु। वो कहते थे कि आप हज़ार भगवान, हज़ार देवी देवताओं की पूजा ना करके शिव या विष्णु में आस्था रखें। दे कंपोज्ड डिवोशनल सॉन्ग्स इन तमिल ऑल्सो विच बिकेम वेरी पॉपुलर among the common people because the Tamil was the common language for that time, at that time for the common people. ठीक है। तो the Shiva devotees were known as the Nayanars and the Vishnu devotees were known as Alvars. तो they also worshipped Krishna and Rama incarnations of Vishnu। विष्णु के अवतार जो थे कृष्ण और राम, उनका भी भक्ति करते थे। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट के इन्फ्लुएंस में आके टेम्पल्स बहुत सारे बने इन डिफरेंट प्लेसेस। द किंग सॉट टू मेक दिस टेम्पल्स इवन मच मोर मैग्निफिसेंट टू शो देयर ग्लोरी, देयर इन्फ्लुएंस, कि हमारा कितना ज़्यादा वर्चस्व है। बट मैनी डिवोटीज वर नॉट हैप्पी विद द वे द किंग्स वर सीकिंग टू ग्लोरीफाई देयर नेम्स, है ना। कई लोग खुश नहीं थे कि क्या मंदिर बनवा के अपने आप का वर्चस्व दिखा रहे हैं। दे बिलीव दैट द लव फॉर गॉड शुड नॉट बी मैनिफेस्ट इन एनी आउटवर्ड पॉम्प एंड शो, दिखावा नहीं करना चाहिए। चीफ अमॉन्ग दीज डिवोटीज विद द लिंगायत्स और वीर शैव ऑफ कर्नाटका। और इसके चीफ डिवोटीज कौन थे? लिंगायत्स और वीर शैव ऑफ कर्नाटका। द मेन इंस्पिरेशंस ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन द साउथ वॉज बसावना एंड अक्कमा देवी। अक्कमा देवी के बारे में हम लोगों ने कुछ वीडियोस पहले पढ़ा है। तो दे साउट टू एरिडिकेट ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट एंड क्लास। वो कास्ट और जाति और क्लास, ऊपर नीचे, ऊंच नीच नहीं मानती थी। द नथपंथीज एंड द सिद्धा स्टार्टेड अ सिमिलर मूवमेंट इन बंगाल एंड बिहार। नथपंथीज और सिद्ध लोगों ने क्या सेम मूवमेंट स्टार्ट किया बंगाल और बिहार में। द भक्ति सेंट्स रोड सॉन्ग्स इन द लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द कॉमन पीपल। भक्ति साधु संत जो थे वो कॉमन लैंग्वेजेस में
गाने लिखने लगे, भक्ति सॉन्ग लिखने लगे. दीज हेल्प द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस लोकल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर. और इसके कारण बहुत से लोकल लैंग्वेजेस और लिटरेचर के डेवलपमेंट में सहायता हुई. वी फाइंड मैनी सच कंपोजिशंस फ्रॉम दिस एरा इन द रूडिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ दीज लैंग्वेजेस. जो रूढ़िवादी तरीका होता है, like Tamil, Telugu and Kannada in south and Gujarati and Hindi in the north. Now we will read about the temple and architecture. Many imposing temples were built during this era. बहुत सारे temples build किए गए. These temples consist of a गर्भगृह. यहाँ पे गर्भगृह बना होता था, शिखर बना होता था और बहुत सारे छोटे बड़े मंडप बने होते थे. On entering the temple, जब हम टेम्पल पे एंटर करते थे, one first comes across the main मंडप. सबसे पहले जो आता था वो मेन मंडप आता था. After which are the अर्ध मंडप और द महामंडप, ये आता था. दीज मंडप्स आर बेसिकली लार्ज हॉल्स होते थे ये, जहाँ पे डिवोटीज खड़े होकर अपने गॉड या देवी या देवताओं के गॉड्स एंड गॉडेस के दर्शन करते थे. द गर्भगृह इज द सेंटर प्लेस और सेंट्रल श्राइन वेयर द इमेजेस ऑफ गॉड और गॉडेसेस आर प्लेस्ड. गर्भगृह वो होता था जहाँ पे हमारे भगवान देवी देवता बैठे होते थे. द शिखरा अ टॉल स्पायर लाइक स्ट्रक्चर जो होता था एकदम लंबा, वो क्या होता था, शिखरा वो गर्भगृह के जस्ट ऊपर बनाता था, जिसको देख के समझ आ जाता था कि ओके इस शिखर के नीचे ही, ठीक है, तो इसको देख के हमको समझ में आ जाता था ओके यहाँ पे गर्भगृह है, कि वी आवर गॉड इज सिटिंग देयर. तो इट इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द टेम्पल एंड इट इज़ यूजली बिल्ट इन 2 स्टाइल्स. और 2 स्टाइल्स में बना होता था. फर्स्ट था साउदर्न स्टाइल विच यू कैन सी इन द मैप 1. इलस्ट्रेशन 1.3 एंड द नॉर्दर्न 2.2. ये वाला आप देख सकते हैं, ये this one. Okay, some striking examples of the temple architecture of the time include the Sun Temple at कोणार्क उड़ीसा में सन टेम्पल बना है. खजुराहो टेम्पल इन चंदेला किंग्स के द्वारा बनाया गया था. एंड राजेश्वर टेम्पल बिल्ट बाय राजाराज चोला. ये सारे मैग्निफिसेंट टेम्पल्स हैं. अदर नोटेबल एग्जाम्पल्स इंक्लूड द रतनपुर टेम्पल, जो छत्तीसगढ़ में रतनपुर टेम्पल बना है, ठीक है, बिल्ट बाय द कलचुरी रूलर्स थे, जो कलचुरी शासक थे उनके द्वारा बनाया गया था. द गंदई पंडरिया टेम्पल, ये जो दिख रहा है आपको पिक्चर में. द शिवरी नारायण टेम्पल बिल्ड बाय जयजल्य देव एंड द भोरम देव टेम्पल ऑफ कबीरधाम एट कवर्धा. ये सारी चीज़ें टेम्पल्स हैं उस समय की जो राजा लोग बनवाए थे. दे कंटेन मैसिव इमेजेस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस कार्व्ड इन स्टोन. एंड पत्थरों में कैसे देवी देवताओं की एक बड़ी सी अद्भुत प्रतिमा बनाई गई है और दिखाया गया है. ये वो सारी चीज़ें हैं और वहाँ पे स्थापित हैं. सो हमारा ये चैप्टर भी यहीं ख़त्म होता है. अगर आपको इसके एक्सरसाइज के आंसर्स, क्वेश्चंस आंसर्स और इसके नोट्स चाहिए होंगे और आपको PDF चाहिए होगा तो प्लीज़ ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. आई होप यू आर लाइकिंग माई वीडियोज़. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल भारती राजपूत क्लासेस.